حویلی کے صحن میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ گیندے کے پھولوں کی مہک اور ڈھولک کی تھاپ نے پورے ماحول کو سیر زدہ کر رکھا تھا۔ علیزے نے چوری چھپے سیڑھیوں کے پیچھے سے جھانکا اور پھر اپنی چھوٹی بہن کا ہاتھ زور سے دبایا۔ دعا، تم یہاں کھڑی رہو۔ جیسے وہ اندر داخل ہوا، بس تم نے وہ بالٹی الٹ دے دی۔ علیزے نے شرارت سے آنکھ دباتے ہوئے سرگوشی کی۔ آپ پاگل تو نہیں ہوگی ابھی؟ اگر تایا ابو یا دادا سائی نے دیکھ لیا تو ہماری شامت آ جائے گی۔ دعا نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا اور اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ تم اتنے ڈرتی کیوں ہو؟ وہ کوئی جن تھوڑی ہے، بس 10 سال بعد آ رہا ہے، اسے پتا تو چلے کہ اس کا استقبال کس دھوم دھام سے ہو رہا ہے۔ علیزے نے شوخی سے کہا اور اپنے دوپٹے کا پلو کمر سے باندھ دیا۔ اسی وقت حیدر ہنستا ہوست کے قریب آیا اور علیزے کے سر پر دھپ لگائی۔ لگتا ہے آج پھر کسی کی شامت آنے والی ہے۔ حیدر نے شرارے سے پوچھا، آپ اپنا کام کریں حیدر بھائی، اپنی شادی کی فکر کریں، اور یہ جو آپ کے دانت نکل رہے ہیں نا، انہیں سنبھالتے رکھیں۔ علیزے نے چڑ کر جواب دیا، اچھا بھائی میں تو جا رہا ہوں، لیکن وہ آ چکا ہے، بس گیٹ پر ہی ہے۔ حیدر نے مسکراتے ہوئے باہر کی طرف اشارہ کیا۔ باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی اور حویلی میں اچانک ایک خاموشی سی چھا گئی۔ سب کی نظریں دروازے پر تھی جہاں سے ایک ہینڈسم لڑکا اندر داخل ہوا۔ کالے سوٹ میں ملبوس وہ نوجوان اپنی گہری نظروں سے حویلی کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے چلنے کے انداز میں ایک عجیب سا روٹ تھا۔ السلام علیکم۔ شیروز نے سنجیدگی سے سر جھکا کر سب کو سلام کیا۔ اس کی آواز میں وہ بھاری پن تھا جو 10 سال پہلے نہیں تھا۔ آؤ میرے بچے آؤ۔ سردار بخت نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ کیسا رہا سفر؟ تھک تو نہیں گئے؟ بیجان نے اس کے گرد صدقے واری ہوتے ہوئے پوچھا۔ جی بیجان میں بالکل ٹھیک ہوں، بس تھوڑی سی تھکن ہے، شیروز نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، مگر اس کی نظریں مسلسل پورے ذہن کا چکر لگا رہی تھی جیسے وہ کسی خاص چہرے کی تلاش میں ہو۔ تبھی اس کی نظر سیڑھیوں کے پاس کھڑی اس لڑکی پر پڑی جس کے چہرے پر ابھی بھی وہی بچپن والی شرارت تھی، مگر وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ شیروز نے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن نے ایک پل کے لیے جیسے بغاوت کر دی۔ وہ علیزے تھی جو مکمل طور پر جوان اور بے حد خوبصورت ہو چکی تھی۔ علیزہ نے جیسے ہی شیروز کی نظروں کا حصار محسوس کیا، اس نے ایک دم سے نظریں جھکا لی اور دعا کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے کچن کی طرف بھاگی۔ وہ تو بالکل ہی بدل گئے ہیں ابھی، دعا نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے ہانپتے ہوئے کہا۔ ہاں تو کیا ہوا؟ بدل گیا، ہم کیا کریں؟ علیزہ نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا جس کی دھڑکن بلا وجہ ہی تیز ہو رہی تھی۔ وہ آپ کو ہی دیکھ رہے تھے آپ ہی، کتنے ہینڈسم لگ رہے ہیں نا۔ دعا نے اسے چھیڑا، حالانکہ وہ علیزے سے عمر میں کم تھی۔ چپ کر جاؤ تم، زیادہ باتیں نہ بناؤ، دیکھنا اسے کیسے سبق سکھاتی ہوں میں، علیزے نے مصنوعی غصے سے کہا، مگر اس کی گالوں پر آئی سرخی کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ ادھر باہر صحن میں شیروز ابھی بھی دیکھ رہا تھا جیسے وہ لڑکی غائب ہوئی تھی۔ کیا دیکھ رہے ہو شیروز؟ حیدر نے اس کے قریب آ کر کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کچھ نہیں بھائی، بس دیکھ رہا ہوں کہ 10 سالوں میں یہ حویلی کتنی بدل گئی ہے، شیروز نے سنبھلتے ہوئے کہا، مگر اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ حویلی کے بلائی حصے میں بنے کمرے کے باہر علیزے دبی دبی ہنسی روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا آلہ تھا جس سے وہ کمرے کی بجلی کنٹرول کر رہی تھی۔ دعا پیچھے کھڑی مسلسل منع کر رہی تھی، مگر علیزے کے سر پر تو جیسے بھوت سوار تھا۔ باز آ جائے اپی، وہ تایا ابو کا بیٹا ہے، کوئی چھوٹا بچہ نہیں جو آپ کی ان حرکتوں سے ڈر جائے گا۔ دعا نے علیزے کا بازو پکڑ کر کھینچا۔ تم چپ کر دعا، بس دیکھتی جاؤ، امریکہ سے واپسی پر اسے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے یا نہیں؟ علیزے نے شرارت سے کہا اور جیسے ہی کمرے کے اندر قدموں کی آواز آئی اس نے مین سوئچ گرا دیا۔ کمرے میں گپ اندھیرا چھا گیا تھا۔ شیروز جو بھی اپنا کوٹ اتار کر بیڈ پر رکھنے ہی والا تھا ایک دم رک گیا۔ اسے باہر سے کسی کے بھاگنے کی چاپ سنائی تھی۔ وہ خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھا اور اسے جھٹکے سے کھول دیا۔ باہر علیزے بھاگنے ہی والی تھی کہ شیروز کا مضبوط ہاتھ اس کی کلائی کے گرد کسی ہتھ گڑی کی طرح جم گیا۔ علیزے کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی، چھوڑی مجھے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ علیزے نے اپنا ہاتھ چھوڑانے کی کوشش کرتے غصے سے کہا، بدتمیزی یا بچپنا؟ شیروز نے اسے اپنی طرف کھینچتے نہایت سرد اور بھاری آواز میں پوچھا۔ اس کی آنکھیں اندھیرے میں بھی چمک رہی تھی۔ میرا ہاتھ چھوڑے ورنہ میں ابا سائیں کو بلا لوں گی، علیزے نے تڑپ کر کہا، مگر شیروز کی گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ بلا لو اپنے ابا سائیں کو بھی اور سردار بخت کو بھی،
ताकि उन्हें भी पता चले कि उनकी लाडली पोती 10 साल बाद आने वाले शौहर का इस्तकबाल कैसे करती है। शेरोज ने उसके चेहरे के करीब झुक कर कहा, जिससे अलीजे की सांसें थमने लगी। आप बदल गए, पहले तो आप इतने गसीले नहीं थे। अलीजे ने नजरें चुरा कर धीमे लहजे में कहा, वक्त और हालात इंसान को बदल देते हैं अलीजे, और वैसे भी अब मैं वो 17 साल का लड़का नहीं रहा जिसे तुम कुछ भी कहकर भाग जाती थी। शेरोज ने उसे दीवार के साथ लगाते हुए जताया। अलीजे को अपने गिर्द शेरोज की परफ्यूम की खुशबू साफ महसूस हो रही थी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा कि शेरोज भी सुनने का। क्या कर रहे हैं आप, कोई देख लेगा। अलीजे ने घबरा कर कहा, देख लेने दो, आखिर मेरा हक है तुम पर। याद है ना वो कागज जिस पर हम दोनों ने दस्तखत किए थे। शेरोज ने शरारत और संजीदगी के मिले जुले तासुर के साथ पूछा, वो तो बचपन की बात है, अब छोड़े ये सब। अलीजे ने उसे धक्का देने की कोशिश की, मगर वो किसी चट्टान की तरह अपनी जगह मौजूद रहा। अच्छा, बचपन की बात थी तो फिर अब बड़े होकर याद दिलाना पड़ेगा। शेरोज ने उसका हाथ छोड़कर एक कदम पीछे हटाया और बिजली का स्विच दोबारा ऑन कर दिया। रोशनी होते ही अलीजे ने देखा कि शेरोज के लबों पर वही फातिहाना मुस्कुराहट थी जो उसे हमेशा जहर लगती थी। वो बिना कुछ कहे वहां से सरपट भागी और सीधी बीजान के कमरे में जाकर दम लिया। बीजान, देखे ना शेरोज कितना बदतमीज हो गया है। अलीजे ने बीजान की गोद में सर रखते हुए शिकायत की। बीजान जो तस्बीह पढ़ रही थी मुस्कुरा दी और उसके सर पर हाथ फेरने लगी। क्या हुआ मेरी गुड़िया, शेरोज पुत्र ने कुछ कहा क्या? बीजान ने मोहब्बत से पूछा। वो मुझे डरा रहा था। अलीजे ने मुंह बसोर कर झूठ बोला। इतने में हाथ में छुरी पकड़े सरदार बख्त कमरे में दाखिल हुए। उनकी शख्सियत में एक रूप झलक रहा था। कौन डरा रहा था मेरी पोती को? सरदार बख्त ने गरजदार आवाज में पूछा, मगर उनकी आंखों में अलीजे के लिए बेपनाह प्यार था। कुछ नहीं, बस बच्चों की नोक-झोंक है, मीजान ने बात संभालते हुए कहा। सरदार बख्त ने सोफे पर बैठ गए थे। सुनो बेगम, शिरोज अब आ गया है तो मैं चाहता हूँ कि हैदर की शादी के फौरन बाद इन दोनों की रुखसती का भी सोचा जाए। अब ज्यादा देर करना मुनासिब नहीं है। अलीजे ने जैसे ही सुना उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। अगले दिन हवेली की सुबह मामूल से ज्यादा हंगामा खेज थी। नाश्ते की मेज पर तमाम मर्द हजरात मौजूद थे। सरदार बख्त सरबराही कुर्सी पर बैठे थे, जबकि उनके दाएं जानिब दोनों बड़े बेटे और शेरोज बैठा था। सबसे आखिर में नादिर अली नींबा आंखों के साथ दाखिल हुए और खामोशी से कुर्सी खींच कर बैठ गए। नादिर पुत्र, क्या इरादा है? आज फिर दोपहर तक सोने का प्रोग्राम था। सरदार बख्त ने ऐनक के ऊपर से दिखते हुए पूछा। अब्बा सही, बस रात नींद जरा देर से आई थी। नादिर अली ने काफी का मग उठाते हुए सुस्ती से जवाब दिया। क्यों चाचा जान, कहीं रात पर दीवार के उस पार तो नहीं झांक रहे थे? शेरोज ने शरारत से लुकमा दिया तो मेज पर मौजूद हैदर और बाकी सबकी दबी दबी हंसी निकल गई। शेरोज मियाँ, तुम अभी अमेरिका से आए हो, वहीं की बातें करो तो बेहतर है। नादिर अली ने खसियानी हंसी हंसते हुए उसे घूरा और फिर खामोशी से नाश्ते में मसरूफ हो गया। भले वो भतीजों से बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन चचा तो था। थोड़ी देर बाद नाश्ता खत्म हुआ और हर कोई वहां से उठ गया। अलीजे जो दूर खड़ी दुआ के साथ फलों की ट्रे सजा रही थी, शेरोज की इस बदली हुई अंदाज पर हैरान थी। वो कितना बेतकल्लुफ हो गया था, जबकि बचपन में तो सबसे कटकर रहता था। अलीजे बेटा, शेरोज को ये देकर आ। वीजा ने बावर्ची खाने से निकलते हुए हदायत दी थी। अलीजे का दिल चाह के मना कर दे, मगर बीजान के सामने जुबान खोलना महाल था। उसने ट्रे उठाई और बोझल कदमों से ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ी। जैसे वो शेरोज के करीब पहुंची, उसने जानबूझकर ट्रे मेज पर जोर से रखे, जिससे शेरोज की कॉफी का एक कतरा उसकी आस्तीन पर जा गिरा। ओ आई एम सॉरी, अलीजा ने बिना किसी अफसोस के कहा और पलटने लगी। रुको। शेरोज की आवाज में वो रोप था कि अलीजे के कदम खुद ब खुद रुक गए। शेरोज उठा और उसके सामने खड़ा हुआ। तुम्हारी सॉरी में माजरत कम और शरारत ज्यादा लग रही है, शेरोज ने बहुत धीमी आवाज में कहा ताकि सिर्फ अलीजे ही सुन सके। तो आप क्या चाहते हैं, मैं अब मातम करूं? अलीजे ने आंखें दिखाते हुए जवाब दिया। नहीं, मातम नहीं, बस ये साफ कर दो। शेरोज ने अपनी आस्तीन उसके सामने कर दी। मैं आपकी मुलाजमा नहीं हूं। अलीजे ने गुस्से से पाँव पटका वहां से जाने लगी, लेकिन शेरोज ने तेजी से उसका दुपट्टा अपनी उंगलियों में लपेटा और उसे अपनी तरफ खींचा। छोड़े, क्या कर रहे हैं, कोई देख लेगा। अलीजे ने हड़बड़ा कर इधर उधर देखा। कोई नहीं देख रहा, और अगर कोई देख भी लेगा तो मैं अपनी बीवी से अपनी आस्तीनें साफ करवा रहा हूँ, कोई गुनाह तो नहीं कर रहा।
शिरोज के लहजे में एक अजीब सी शोखी थी। अब बहुत ज्यादा बदतमीज हो गए। अमेरिका ने आपको कुछ नहीं सिखाया? अलीजे ने तड़प कर अपना दुपट्टा छुड़ाने की कोशिश की। अमेरिका ने मुझे अपना हक छीनना सिखाया अलीजे, और याद रखना, जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। शिरोज ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, फिर दुपट्टा छोड़कर दोबारा अपनी कुर्सी पर बैठ गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अलीजा गुस्से में भरी हुई वहां से भागी और सीधी हवेली के पिछले हिस्से में मौजूद लॉन में आ गई, जहां बड़े से नीम के दरख्त के नीचे झूला लगा हुआ था। वो वहां बैठकर खुद को कोसने लगी कि वो क्यों उसके सामने गई थी। थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसे लगा दुआ होगी। दुआ? मैं कह रही हूँ ना, मुझे सड़ियल शेरोज की कोई बात नहीं करनी। अलीजा ने बिना पीछे देखे हुए कहा, सड़ियल? ये नाम अच्छा है वैसे। शेरोज की आवाज उसके कानों में बिल्कुल करीब गूंजी थी। तो अलीजा उछलकर खड़ी हो गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा पीछा करना छोड़ दें। पीछा मैं नहीं कर रहा, बल्कि ये जगह मेरी पसंदीदा है। बचपन से मैं यहीं बैठकर पढ़ता था और तुम यहाँ आकर शोर मचाती थी। शेरोज झूले की सतून से टेक लगाकर खड़ा हो गया। अब मैं शोर नहीं मचाती, और ना ही मैं वो छोटी अलीजे हूँ। अलीजे ने गर्दन अकड़ा कर कहा, मानता हूँ तुम बदल गई हो, बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। शिरोज ने अचानक इतराफ किया तो अलीजे का सारा गुस्सा जैसे बर्फ की तरह पिघलने लगा। उसे तवक्का नहीं थी कि वो अपनी आसानी से उसकी तारीफ करे, लेकिन तुम्हारा दिमाग अभी भी वही 13 साल वाली उम्र पर रखा हुआ है। शिरोज ने अगले लम्हे उसकी सारी खुशी पर पानी फेर दिया। आप अलीजे के पास अल्फाज खत्म हो गए थे। शिरोज एक कदम आगे बढ़ा और अलीजे के चेहरे पर झूलती एक लट को उंगली से पीछे किया। तुम मुझसे जितना भी भाग लो अलीजे, आखिर में तुम्हें मेरे पास ही आना है। ये तुम्हारा मुकद्दर है। अलीजा ना चाहते हुए भी उसकी बातें सुन रही थी। और फिर वो सारा दिन यूं ही गुजर गया। हवेली की छत पर रात का पिछला पहर था। आसमान पर चांद अपनी पूरी आगो किताब के साथ चमक रहा था, मगर हवेली के एक कोने में बनी मंदिर के पास अंधेरा था, जहां सब कजिन्स किसी चोर की तरह दुपक कर बैठी थी। हैदर ने अपने मोबाइल की टॉर्च चलाई और स्पीकर ऑन करके मायरा की तरफ लाइन पर लाया, जो शहर में अपने कमरे में बैठी इस पूरी साजिश का हिस्सा बनी थी। देखो हैदर, तुम सबको मेरी बात बहुत गौर से सुननी होगी। सरदार बख्तर साहब को मनाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, लेकिन अब हम अगर इमोशनल कार्ड खेलेंगे तो बात बन सकती है। मायरा की आवाज मोबाइल से गूंजी, जो थोड़ी दबी दबी थी। मायरा, तुम मशवरा तो ऐसे दे रही हो जैसे दादा साईं हमारे कहने पर अपनी जिद छोड़ देंगे। तुम्हें पता है ना वो कितने गुस्से वाले हैं। अलीजा ने अपने घुटनों पर थोड़ी रखकर बैठते हुए कहा, आप तो बस डरती ही रहे। आप ही, हैदर भाई की शादी हो रही है, तो क्यों ना हम उसी बहाने चचा नादिर की जिंदगी का भी फैसला कर ले। दुआ ने अपनी बड़ी बहन को शरारत से चुटकी काटी। दुआ, तुम थोड़ा ना आहिस्ता बोलो। अगर ये भी जानों पर आ गई तो हम सबका मिशन यहीं धरा का धरा रह जाएगा। और वैसे भी शुरू से अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा। हैदर ने बेचैनी से सीढ़ियों की तरफ देखा। मैं आ गया हूं, और मुझे सब पता है कि यहाँ क्या खिचड़ी पक रही है। शिरोज की गर्जदार मगर धीमी आवाज अंधेरे से आई तो सब अपनी अपनी जगह से उछल पड़े। वो अंधेरे से निकल कर रोशनी के हाले में आया तो उसकी वजीहा शख्सियत और संजीदा चेहरे ने सबको खामोश कर दिया। शिरोज भाई, आप तो ऐसे आए हैं जैसे कोई जासूस हो। दुआ ने अपना सीना सहलाते हुए कहा, जासूस नहीं, बल्कि मैं इस मिशन का लीडर बनने आया। शिरोज ने के बिल्कुल सामने फर्श पर बैठते हुए कहा। अलीजा ने फौरन अपने बाल बाल समेट लिए और नजरें झुका ली, क्योंकि शेरोज का यूं सामने बैठना उसे अजीब सी बेचैनी में मुब्तला कर रहा था। तो शेरोज, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या हमें चचा नादर के लिए दादा जान से बात करनी चाहिए? हैदर ने उम्मीद भरी नजरों से छोटे भाई की तरफ देखा। बात तो करनी होगी हैदर साहब, लेकिन तरीका थोड़ा मुख्तलिफ होगा। शेरोज ने अलीजा की तरफ देखते हुए कहा, देखो, चाचा नादिर ने अपनी जवानी के बेहतरीन साल एक ऐसी जिद की नजर कर दी है जिसका अब कोई वजूद ही नहीं है। वो जुबैदा अली से आज भी उतनी मोहब्बत करते हैं जितनी 10 साल पहले करते थे। और हैरत की बात यह है कि वो भी अभी तक उनके इंतजार में बैठे हैं। हैदर सारी तफसील बताने लगा था। मतलब वो चौधरी साहब की बेटी अब तक कंवारी है? अलीज़ी ने हैरत से पूछा। हाँ अलीज़ी, वो अभी तक कंवारी है, और ये बात मुझे कल ही पता चली है जब मैं गाँव की एक पुराने दोस्त से मिला। हैदर ने जवाब दिया तो हर तरफ मुकम्मल खामोशी छा गई। ये तो बहुत ज्यादा रोमांटिक है आप ही, बिल्कुल किसी फिल्मों की तरह।
दुआ ने पुरजोश होकर ताली बजाई। तो तुम चुप करो, मारा तुम बताओ क्या करना है। हैदर ने दोबारा मोबाइल की तरफ रुख किया। मेरा प्लान ये है कि जब तुम लोग शादी का कार्ड देने चौधरी साहब के घर जाओ तो चाचा नादिर को जबरदस्ती साथ लेकर जाओ। वहां सब उनका आमना सामना होगा तो बरसों की जमी हुई बर्फ खुद ब खुद पिघल जाएगी। मायरा ने अपनी हतमाई मशवरा दिया। प्लान तो अच्छा है, लेकिन चाचा नादिर को कैसे मनाएंगे? वो तो अपनी उदासी के कमरे से बाहर ही नहीं निकलते। अलीजे ने सोचते हुए कहा, उन्हें मैं मनाऊंगा। शेरोज ने इतमाद से कहा और फिर एक शरारत से अलीजे की तरफ झुका। लेकिन इस मिशन में अलीजे को अपने साथ देना होगा, क्योंकि बीजान की लाडली यही है। अगर बीजान मान गई तो दादा साईं को वो खुद ही संभाल लेगी। मैं क्यों? अलीजे ने हकला कर पूछा। क्योंकि तुम इस हवेली की जान हो और तुम्हारी बात कोई नहीं डालता। शेरोज ने बहुत धीरे लहजे में कहा, जिससे अलीजे के कानों की लुई सुर्ख हो गई थी। अगली सुबह हवेली का माहौल हस्बे मामूल पुरसुकून था। शादी में कुश्ती नहीं रह गए थे और आज मुलाजमाएं ढोलक बजा रही थी। सरदार बख्त दोनों बड़े बेटों के साथ बैठक में गांव के मामलात सुलझा रहे थे, जबकि बीजान किचन में नाश्ते की निगरानी कर रही थी। यही मौका था जब सब बच्चों ने चाचा नादिर के कमरे का रुख किया। चाचा नादिर इस वक्त अपने बिस्तर पर बैठे कोई पुरानी सी डायरी पढ़ रहे थे। जैसे ही सब एक साथ कमरे में दाखिल हुए, उन्होंने बौखला कर डायरी तकिए के नीचे छुपा दी और चश्मा ठीक किया। क्या बात है, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? कोई नई शरारत सूझी है क्या? 40 साला नादिर अली ने अपने लहजे में मस्नूई सख्ती लाने की कोशिश की। चाचा जान, अब शरारतों के दिन गुजर गए, अब तो अमली काम का वक्त है। हैदर ने उनके बेड पर बैठते हुए कहा। कौन सा अमली काम? नादिर ने हैरत से कहा। वही काम जो आप 10 साल पहले अधूरा छोड़ गए थे चाचा जान। शेरोज ने आगे बढ़कर उनके कंधे पर हाथ रखा। उनकी आवाज आंखों में झांका, जहां अब भी एक पुरानी गजब थी। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? जाओ यहाँ से, मुझे आराम करने दो। नादिर ने उठने की कोशिश की, मगर शेरोज ने उन्हें दोबारा बिठा दिया। चाचा जान, हम सब जानते हैं आगे आप जुबैदा आंटी के बारे में क्या महसूस करते हैं, और हमें ये भी पता है कि आज भी आप वो आपकी रात देख रही है। अलीजे ने बहुत मोहब्बत और संजीदगी से कहा तो नादिर का चेहरा एकदम साकित हो गया। तुम्हें किसने बताया ना? नादिर की आवाज अब भारी हो गई थी और उनकी आंखों में नमी तैरने लगी थी। चाचा जान, नाम में क्या रखा है? हम तो आपकी उदासी खत्म करना चाहते हैं। हैदर ने शरारत से कहा, बेटा अब बहुत देर हो चुकी है, अब तो मेरी आधी उम्र गुजर चुकी है, अब ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। अब्बा साईं ने जो फैसला उस वक्त किया था वो पत्थर पर लकीर है और मैं उनकी नाफरमानी नहीं कर सकता। नादिर ने हारे हुए लहजे में गर्दन झुका ली। मोहब्बत में कभी देर नहीं होती चाचा जान, और दादा साईं से बात हम करेंगे, अब बस हिम्मत ना हारे। शरोज ने उन्हें हौसला दिया। नादिर अली खामोश रहे, मगर उनके चेहरे पर एक उम्मीद की किरण नजर आने लगी थी। उन्हें लग रहा था कि शायद उनके भतीजे और भतीजियां उनके लिए वो कर सकते हैं जो वो खुद कभी ना कर पाए। अच्छा ठीक है, अब तुम सब जाओ यहाँ से, मुझे थोड़ी देर अकेले रहना है। नादिर ने धीमे लहजे में कहा। उन सब के जाने के बाद दोबारा वो डायरी निकाल ली, जिसकी एक वर्ड पर एक मुरझाया हुआ गुलाब आज भी अपनी कहानी सुना रहा था। बाहर निकलते लीजे ने शेरोज को रोका। आपको सच में लगता है कि सब मुमकिन है? मुमकिन तो सब कुछ है लीजे, बस इरादे मजबूत होने चाहिए। शेरोज ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, और फिर अचानक उसका हाथ थाम लिया, जिससे उसे यकीन दिला रहा हो। अलीजे ने फौरन अपना हाथ उड़ाया और उधर उधर देखा। क्या कर रहे हैं आप? अगर किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा, देख लेने दो। अलीजे, अब मैंने फैसला कर लिया कि इस हवेली में अब सिर्फ चचा नादिर की ही नहीं, बल्कि एक और अधूरी कहानी भी मुकम्मल होगी। शेरोज ने मायनी खीज नजरों से उसे देखा और वहां से चला गया, और लीजे वहीं खड़ी रह गई। उसका दिल इतनी जोर से धड़का कि उसे अपनी सांसें भी तरतीब में लाना मुश्किल हो गई थी। हवेली में होने वाली इस बड़ी सी साजिश से सरदार बख्त और बीबी जान मुकम्मल बेखबर थे। तमाम कजन्स ने मिलकर एक ऐसी चाल चली जिसका मकसद दो पुराने दोस्तों के दरमियान जमी बर्फ को पिघलाना था। एक खत और शादी का दावतनामा चौधरी हशमत के नाम इस तरह भेजा गया जैसे वो खुद सरदार बख्त ने लिखवाया हो। बरसों की रंजिश को खत्म करने के लिए एक ऐसा तरीका था जिसकी जीत या हार का दारो मदार सिर्फ उसी एक मुलाकात पर था। और आखिरकार मेहंदी की रात भी आ गई। मेहंदी की रात अपनी पूरी रानाइयों के साथ हवेली के आंगन में उतर चुकी थी। पीले गेंदे के फूलों और मिट्टी के चरागों की रोशनी ने माहौल को अफसानवी बना दिया था। अभी ढोलक की थाप तेज ही हुई थी कि हवेली के सदर दरवाजे पर एक गाड़ी आकर रुकी और वक्त जैसे थम गया।
सरदार बख्त जो अपने बेटों के दरमियान बैठे मेहमानों से बातें कर रहे थे, एकदम चौंक कर खड़े हो गए। सामने चौधरी हशमत अपनी फैमिली के साथ खड़े थे। वही चौधरी हशमत जिनसे 10 साल पहले एक जिद्दी फैसले की बिना पर दोस्ती खत्म कर दी गई थी। सरदार बख्त के कदम खुद ब खुद दरवाजे की तरफ बढ़े और उनके चेहरे पर हैरत के साए थे, मगर जैसे ही उन्होंने अपने पुराने दोस्त की आंखों में वही पुरानी मोहब्बत देखी तो उनके चेहरे की सख्ती पिघलने लगी। हशमत तुम यहाँ? सरदार बख्त की आवाज जज्बात से रूंध गई। बख्त खान, जब दोस्त खुद बुलावा भेजे तो अना के बुत टूट जाया करते हैं। चौधरी हशमत ने मुस्कुरा कर कहा और आगे बढ़कर सरदार बख्त को गले लगा लिया। इस एक बगलगिरी ने 10 साल की वो तमाम तलखियां दो डाली। हवेली के तमाम अफराद के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई, मगर सबसे अच्छा असर नादिर अली पर हुआ, जो एक सुतून से टेक लगाए खड़े थे। उनकी नजरें चौधरी हशमत के पीछे खड़ी जुबैदा पर जम गई। जुबैदा ने सर झुकाए रखा था, मगर उसके लड़ते हाथ बता रहे थे कि वो भी इस लम्हे की ताब नहीं ला पा रही थी। बरसों का इंतजार और खामोश मोहब्बत उनकी आंखों में सिमट आई थी। अलीज़ा ये जज्बाती मंजर देखकर नम आंखों के साथ मुस्कुराई थी कि उसे महसूस हुआ कि कोई इसे पीछे की तरफ खींच रहा है। वो संभल पाती कि उससे पहले वो हवेली के एक सुनसान और तारीक गोशे में शेरोज के हिसाब में थी। शेरोज ने उसका हाथ छोड़ने के बजाय उसे दीवार के साथ मजीद करीब कर दिया। देख लिया अलीज़े, मैंने कहा था ना कि सच्ची मोहब्बत कभी हारती नहीं। आज सच्चा लादर की जीत हुई है और कल हमारी बारी है। शेरोज की आवाज में एक अजीब सा खुमार और अपनाइट थी। अलीज़े ने नजरें झुकाकर उसे अपने हाथ की उंगलियों को मरोड़ा। आप पहले जैसे नहीं रहे, अब आपसे बात करते हुए डर लगता है। अलीज़े ने खुमार आलूद लहजे में कहा। डर कैसा अलीज़े? मैं तो सिर्फ अपना हक जता रहा हूं। शेरोज ने उसके चेहरे के करीब झुककर बहुत धीमे लहजे में कहा और अपनी उंगलियां अलीज़े के गाल पर फेरने लगा, जिससे अलीज़े के पूरे वजूद में एक सनसनी सी दौड़ गई थी। शेरोज ने उसके कान के पास सुरगुशी की। तुम क्या समझती हो मैं 10 साल वहां तुम्हारे बगैर सुकून से रहा हूं? हर पल, हर लम्हा मैंने इस निकाह को निभाया है और अब मैं तुम्हें किसी और के बारे में सोचने की इजाजत भी नहीं दे सकता। अलीज़ा ने हिम्मत जमा करके उसकी आंखों में देखा। आपको लगता है कि मैं किसी और के बारे में सोच सकती हूँ? शेरोज के लबों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट आई। उसने अलीज़ा की कलाई अपनी गिरफ्त में मजबूत की और उसका हाथ अपने दिल पर रख दिया, जहां धड़कने किसी तूफान का पता दे रही थी। ये दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है अलीज़ा। शेरोज ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा तो अलीज़ा का दिल चाहा कि वो वहीं जमीन पर खड़ जाए। शर्म और खुशी का एक ऐसा मिला जुला एहसास था कि वो कुछ बोल ही ना सकी। उसे शेरोज को हल्का सा धक्का दिया और दुपट्टा संभालती वहां से भागी, लेकिन उसके लबों पर फैली मुस्कुराहट शेरोज के लिए जीत का पैगाम थी। सुबह का सूरज नई उम्मीदें लेकर तुलू हुआ था। हर तरफ गहमा गहमी थी, मगर उन सबके दरमियान दो दिल ऐसे थे जो एक दूसरे के करीब आने के लिए बेचैन थे। हैदर की बारात की रवानगी का वक्त करीब आ रहा था और लीजे अपने कमरे में तैयार होने में मसरूफ थी। जब अलीज़े ने गुलाबी रंग की जालीदार साड़ी पहनी और माथे पर छोटी सी बिंदिया सजाई तो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वो आईने के सामने खड़ी खुद को निहार रही थी कि उसे बाहर से शेरोज के भारी कदमों की चाप सुनाई दी। वो तेजी से बाहर निकलकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ी ताकि हुजूम में शामिल हो सके, मगर सीढ़ियों के मोड़ पर ही शेरोज से उसका टकराव हो गया। शेरोज जो स्याह रंग की शेरवानी में गजब ढा रहा था, अलीज़े को इस रूप में देखकर दंग रह गया और उसके कदम वहीं रुक गए और नजरें अलीज़े के चेहरे पर जम गई। अलीज़े ने घबरा कर अपनी साड़ी का पल्लू संभाला और नजरें झुका ली। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सब नीचे इंतजार कर रहे होंगे, अलीज़े ने लड़ती हुई आवाज में कहा। शेरोज ने एक कदम आगे बढ़ाकर उसे सीढ़ियों के जंगले और अपने दरमियान महसूर कर लिया। तुम आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत नहीं लग रहे। शेरोज की आवाज में वो रोब था जो अलीज़े को बेबस कर देता था। छोड़े शेरोज, ये ठीक नहीं है, वरना मैं आपके भाई को कह दूंगी। अलीज़े ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे हटाने की कोशिश की, मगर शेरोज ने उसका हाथ पकड़कर वहीं रोक लिया। मैंने कहा था ना कि मुझे भाई मत कहना अलीज़े, और वैसे भी इन गुलाबी रंग में तुमने मेरी धड़कनें रोक दी हैं। शेरोज ने उसकी आंखों में झांका जहां सिर्फ उसका अपना अक्स था। अलीज़े का सांस फूलने लगा। उसे लगा जैसे हवेली का सारा शोर खत्म हो गया और सिर्फ वो दोनों वहां मौजूद है।
शिरोज ने झुककर उसके कान में सरगोशी की। आज तुम पर से नजरें हटाना मुश्किल होगा मेरे लिए, बस तैयार रहना। बारात का पूरा वक्त अलीजे के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं था। वो जहां भी जाती, शिरोज की गहरी नजरें उसका ताकुब करती। शादी हाल के हुजूम में भी जब दोनों की नजरें मिली तो अलीजे का चेहरा सुर्ख हो गया। शिरोज ने दूर बैठे भी अपनी नजरों से अलीजे को जैसे कैद कर रखा था। वापसी के वक्त सब लोग गाड़ियों में बैठ रहे थे कि किसी ने अलीजे को आवाज दी, बेटा अलीजे, तुम शिरोज की गाड़ी में बैठ जाओ, बाकी गाड़ियां फुल हो चुकी है और हैदर की दुल्हन के साथ भी कुछ लोगों को जाना है। अलीजे का दिल जोर से धड़का। वो खामोशी से शिरोज की काली गाड़ी की पिछली नशिस्त पर बैठ गई और शिरोज से आईने में देखकर मुस्कुराने लगा। पीछे क्यों बैठी हो? मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, आ गया हूँ। अलीजे ने बहस करना चाही मगर शिरोज की घूरी पर वो खामोशी से आगे आकर बैठ गई। सारा रास्ता गाड़ी में एक अजीब सी खामोशी और तनाव था। शिरोज ने एक हाथ से स्ट्रिंग संभाला हुआ था और दूसरा हाथ अलीजे के हाथ के बिल्कुल करीब था। तुम्हारा निकाह मुझसे हुआ अलीजे, किसी अजनबी से नहीं। शिरोज ने अचानक खामोशी तोड़ी तो अलीजे चौंकी। मुझे पता है, लेकिन आप इतने बेशर्म क्यों हो गए हैं? अलीजे ने मुंह बसोर कर कहा। बेशर्म नहीं, बस अपना हक चाहता हूँ। शिरोज ने मुस्कुरा कर कहा और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। हवेली पहुंचते ही शोर मच गया। नई दुल्हन का इस्तकबाल होना था। अलीजे और दुआ ने मिलकर दरवाजा रोक लिया। ये रस्म उनका पसंदीदा मशगला था। भाईजान, जब तक नेक नहीं मिलेगा हम रास्ता नहीं छोड़ेंगे, दुआ ने शरारत से कहा और अलीजे का हाथ थाम कर खड़ी हो गई। दुआ, तुम हटो यहाँ से। शिरोज ने आगे बढ़कर अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकाली और दुआ की तरफ बढ़ाई, मगर उसकी नजरें अभी भी अलीजे पर थी। दुआ तो पैसे लेकर साइड पर हो गई, मगर अलीजे वहीं खड़ी रही। शिरोज ने उसके करीब आकर बहुत धीमे लहजे में कहा, आप हट रही हैं, मैं आपको उठाकर हटाऊं? बस यहीं रुक गए हो? अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया क्या? अरे यार, जल्दी से फैमिली ज्वाइन करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे? अलीजे ने आंखें फाड़ कर दिखा। शिरोज ने एक कदम और आगे बढ़ाया तो अलीजे हड़बड़ा कर पीछे हटी। उसका बाप फिसलने ही वाला था कि शिरोज ने उसे कमर से थाम कर अपने साथ लगा लिया। सबके सामने ये सीन इतना अचानक था कि सब दंग रह गए। देख लिया, मेरे बगैर तुम एक कदम भी नहीं चल सकती, शिरोज ने उसकी आंखों में आंखें डालकर जताया और फिर सबकी हंसी के दरमियान उसे छोड़ दिया। अलीजे शर्म से पानी पानी हो रही थी, अंदर की आग से भाग रही थी, क्योंकि शिरोज की फातिहाना मुस्कुराहट ने बता दिया था कि वो आज की बाजी जीत चुका है। हैदर की शादी की पहली रात थी और हवेली के मेहमान धीरे धीरे रुखसत हो चुके थे और अलीजे अपने कमरे की बालकनी में खड़ी ठंडी हवा का लुत्फ ले रही थी और आज होने वाली तमाम वाकयात के बारे में सोच भी रही थी। शिराज का उसे सबके सामने संभालना और वो रूपदार आंखें उसके ज़हन से निकल ही नहीं रही थी। तभी उसे बराबर वाली बालकनी में किसी के बोलने की आवाज सुनाई दी। वो शेरोज का कमरा था। अलीजे तजस्सुस के मारे करीब हुई तो उसे शेरोज की आवाज सुनाई दी। वो किसी से फोन पर बात कर रहा था। देखो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा, बस कुछ काम अधूरे हैं, उन्हें समेट लो, फिर हम साथ होंगे। शेरोज का लहजा बहुत धीमा और मोहब्बत भरा था। अलीजे के पैरों तले से जैसे जमीन निकल गई। उसके जहन में एकदम हजारों सवालात घूमने लगे कि शहरियार का अमेरिका में कोई है? क्या वो किसी और से मोहब्बत करता है? अगर ऐसा है तो यहाँ उसके साथ ये सब क्यों कर रहा है? हाँ, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है, बस थोड़ा सब्र करो, मैं जल्द ही फ्लैट ले लूंगा। शिरोज की अगली बात ने अलीजे के दिल पर जैसे हथौड़ा मारा। वो मजीद वहां खड़ी न रह सकी और नम आंखों के साथ अपने कमरे के अंदर भागी। उसे लगा जैसे शिरोज ने उसके भरोसे का खून कर दिया है। वो पूरी रात तकिए में मुंह छुपाकर रोती रही। उसे अपनी वो तमाम खुशियां अधूरी लगने लगी जो भी चंद घंटे पहले उसे शिरोज की कुर्बत से मिली थी। अगली सुबह जब अली से नाश्ते की मेज पर आई तो उसकी आंखें सूजी हुई थी और चेहरे पर वो रौनक नहीं थी जो हमेशा होती थी। शिरोज ने जैसे ही उसे देखा वो समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। अली से, तुम ठीक हो ना? शिरोज ने सबके सामने फिक्रमंदी से पूछा। जी जी जी, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल, बस सर में थोड़ा सा दर्द है। अलीजे ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया और खामोशी से नाश्ता करने लगी। नाश्ते के बाद जब अलीजे पिछले सहन में पौधों को पानी दे रही थी
تو शेरोज़ वहाँ पहुँचा और उसने अलीज़े का हाथ पकड़ कर उसे अपने तरफ मुतवज्जा किया। क्या हुआ अलीज़े? तुम मुझसे नज़रें क्यों चुरा रही हो? शेरोज़ ने सख्ती से पूछा। आपको इससे क्या? आप जाएं और इससे बात करें जिससे आप रात को फ़ोन पर बातें कर रहे थे। क्या आप जल्द वापस आएंगे? अलीज़े ने गुस्से और दुख के मिले जुले लहजे में सच उगल दिया। शेरोज़ एक लम्हे के लिए हैरान हुआ और फिर उसके लबों पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई। उसने अलीज़े का हाथ छोड़ने के बजाय उसे अपनी मज़ीद करीब कर लिया। तो मेरी प्यारी लीडर लाडली बेगम ने रात मेरी बातें चोरी छुपे सुनी है? शेरोज़ ने शरारत से पूछा। मैंने कोई बातें चोरी नहीं सुनी, बस सुनाई दे गई और अब मुझे पता चल गया है कि आप कितने बड़े धोखेबाज हैं। अलीज़ा ने तड़प कर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो शेरोज़ ने हंसते हुए अपना फ़ोन निकाला और डायल लिस्ट खोलकर अलीज़ा के सामने कर दी। वहाँ सबसे ऊपर मुबश्शिर का नाम था। मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था अलीज़ा, और वो मेरे बगैर वहाँ पर अकेला है और मेरी वापसी का इंतज़ार कर रहा है। इसलिए मैंने उसे दिलासा दे दिया। तुम तो पहले ही जानती हो कि मैं वापस नहीं जाना। अब तुम्हारे बगैर रहना मुमकिन नहीं है मेरी जान। शेरोज़ ने उसकी आंखों में झांकते हुए वजाहत की। अलीज़े को लगा जैसे उसके सर पर घरों पानी पड़ गया हो और वो अपनी हमाकत पर इतनी शर्मिंदा हुई कि इसका जी चाहा कि वो वहां से गायब हो जाए। ओह, मुझे लगा कि अलीज़े ने हकला कर कहा। तुम्हें क्या लगा कि मेरा वहां कोई और है? शेरोज़ ने उसे दीवार से लगाते हुए जताया। अलीज़े, मैंने 10 साल तुम्हारा इंतजार किया है। क्या तुम्हें अब भी मुझ पर शक है? शेरोज़ ने झुककर कहा। अब इस गलत फहमी का जुर्माना तो तुम्हें भरना पड़ेगा ना। कैसा जुर्माना? अलीज़े ने सहम कर पूछा। आज रात हम शहर डिनर पर जा रहे हैं, सिर्फ तुम और मैं, और वहां तुम मुझे वो सब कहोगी जो तुम्हारे दिल में मेरे लिए छुपा हुआ है। शेरोज़ ने हथनई लहजे में कहा और अलीज़े के गल को हल्का सा थपथपाकर वहां से चला गया, जबकि अलीज़े वहीं खड़ी अपनी धड़कती हुई नब्ज संभालने की कोशिश करने लगी। शेरोज़ के जाने के बाद अलीज़ा वहीं साकित रही। पौधों को दिया जाने वाला पानी अब क्यारियों से बाहर बह रहा था, मगर उसे होश नहीं था। उसका दिल सीने में इस कदर जोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी धड़कनें भी सुनाई दे रही थी। मुझे क्या हो गया? अलीज़ा ने खुद से सवाल किया। क्या मैं क्यों उसके सामने इतनी बेबस हो जाती हूँ? वो एक लफ्ज़ बोलता है, मेरी सारी अना, सारा गुस्सा जैसे बाप बनकर उठ जाता है। वो 10 साल कर मुड़कर नहीं आया, और अब जब आया तो उसने मुझे अपनी नज़रों के हिसार में ऐसा कैद किया कि मुझे निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। अलीज़ा ने अपने दहकते गालों पर हाथ रखा। उसे याद आया कि कैसे शेरोज़ ने उसे दीवार के साथ लगाकर हक जताया था। उसे शेरोज़ पर गुस्सा तो था, मगर उसके गुस्से के पीछे एक ऐसी कशिश थी जिसे वो खुद से भी तस्लीम नहीं करना चाहती थी। और शेरोज़ की उस बदली हुई शख्सियत, उसके रोग और उसकी गहरी बुरी आंखों के जादू में गिरफ्तार हो रही थी। उसे डर लग रहा था कि अगर वो यूं उसकी तरफ खींची गई तो अपनी पहचान ही खो देगी। दूसरी तरफ शेरोज़ अपने कमरे की खिड़की से अलीज़े को देख रहा था। उसके लबों पर एक फातिहाना मोहब्बत भरी मुस्कुराहट थी। कितनी मासूम है ये, शेरोज़ ने दिल में सोचा। उसे लगता था कि मैं उसे सिर्फ तंग कर रहा हूँ। उसे क्या मालूम, इन 10 सालों में एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरा जब उसका शरारती चेहरा मेरी आंखों के सामने न रहा। अमेरिका की वो सर्द रातें, मैं भी उसके साथ गुजारा हुआ बचपन, वो मेरा सहारा था। अब जब वो मेरे सामने है तो मैं उसे एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करना चाहता। वो मेरी है और मैं इसे ये बात हर पल याद दिलाऊंगा। शाम का वक्त हुआ तो हवेली में फिर से रौनक बढ़ गई। बीजान और सरदार बख्त बैठे चाय पी रहे थे जब शेरोज़ वहां आया और अलीज़े को बाहर ले जाने की इजाज़त मांगी। दादा साहब, मैं चाहता हूँ कि आज अलीज़े को मैं शहर ले जाऊँ, कुछ शॉपिंग भी करनी है और थोड़ी सैर भी। शेरोज़ ने अदब से कहा। क्यों नहीं पुत्र, ज़रूर जाओ। अब तो ये तुम्हारी अमानत है, तुम पूरा हक रखते हो। सरदार वक्त ने मुस्कुराकर इजाज़त दे दी। अलीज़े जो बीजान के पास बैठी थी, उसने एहतजाज करना चाहा, मगर बीजान ने उसे चुप करवा दिया। जा मेरी गुड़िया, तैयार हो जा, शेरोज़ के साथ घूम फिरा, तेरा दिल भी बहल जाएगा। अलीज़े भूजल कदमों से अपने कमरे में आई और अलमारी खुली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पहने। आखिरकार उसने फिरोजी रंग का एक खूबसूरत सूट निकाला जिस पर हल्का सा काम था। उसने बाल खुले छोड़ दिए और हल्की सी लिपस्टिक लगा दी। आईने में अपना अक्स देखकर उसे खुद से शर्म आने लगी थी। क्या मैं ये सब उस सड़ियल शेरोज़ के लिए कर रही हूँ? उसने खुद से पूछा और फिर खुद ही मुस्कुरा दी। जब वो नीचे आई तो शेरोज़ गाड़ी के पास खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। उसे सफ़ेद कुर्ता और नीली जीन्स पहन रखी थी।
علیزے کو دیکھتے اس کی آنکھیں چمک اٹھی. بہت دیر لگا دی. شیروز نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا مجھے نہیں جانا تھا, بس بیجان کے کہنے پر آ گئی ہوں. علیزے نے بھی اپنی اکڑ برقرار رکھنے کی کوشش کی. اچھا تو پھر یہ اتنا بناؤ سنگار بیجان کے لیے کیا ہے؟ شیروز نے شرارت سے اس کے چہرے کے قریب جھک کر پوچھا. علیزے فوراً گاڑی میں بیٹھ کر رخ موڑ لیا اور شیروز ہنستا ہوا دوسری طرف آ کر بیٹھ گیا. شہر کی سڑکوں پر گاڑی دوڑ رہی تھی اور اندر ایک پرسکون خاموشی تھی. علیزے بار بار چوری چھپے شیروز کے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جو نہایت مہارت سے سٹرنگ سنبھالے ہوئے تھا. اسے محسوس ہوا کہ وہ شیروز کی موجودگی میں خود کو بہت محفوظ محسوس کرتی ہے. یہ احساس نیا تھا مگر بہت خوبصورت تھا. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ علیزے نے آخر کار خاموشی توڑی. وہاں جہاں کوئی ہمیں ڈسٹرب نہ کرے. شیروز نے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھا اور گاڑی ایک عالیشان ریسٹورنٹ کے سامنے روک دی. اس ریسٹورنٹ میں مدھم روشنی تھی اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چہرے کو چھو رہے تھے اور سامنے ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا. علیزہ خاموشی سے کافی کا مگ تھامے سمندر کے پانی کو دیکھ رہی تھی. شیروز نے کرسی تھوڑی قریب کی اور گہری نرسوں سے اسے نہارنے لگا. تمہیں پتا ہے علیزہ, امریکہ میں جب میں اکیلا ہوتا تھا تو مجھے سب سے زیادہ تمہاری کون سی بات یاد آتی تھی؟ شیروز نے بہت دھیمے لہجے میں پوچھا. مجھے نہیں پتا اور نہ ہی مجھے جاننے میں کوئی دلچسپی ہے. علیزہ نے مگ سے نظریں ہٹائے بغیر اسپاٹ لہجے میں جواب دیا, حالانکہ اس کا دل اس وقت زور زور سے دھڑک رہا تھا. تمہارا یہ تیکھا لہجہ اور یہ بے نیازی, اف. شیروز نے مسکرا کر کہا, تم 10 سال پہلے بھی ایسی تھی. جب میں جا رہا تھا تب بھی تم نے مڑ کر نہیں دیکھا تھا اور آج بھی تمہارے ویسے ہی نخرے تم دکھا رہی ہو. شیروز نے شکوہ کن نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا, میں کیوں دیکھتی آپ کو؟ آپ اپنی مرضی سے گئے تھے نا؟ علیزہ نے اپنی بار ترک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا. ہاں, گیا تو اپنی مرضی سے تھا تاکہ تمہارے قابل بن سکوں, تاکہ جب واپس آؤں تو سردار وقت کے سامنے سینہ تان کر کہہ سکوں کہ علیزہ پر صرف میرا حق ہے. شیروز نے میز پر جھک کر اس کا ہاتھ تھام لیا. علیزہ نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی لیکن شیروز کی گرفت بہت مضبوط تھی. علیزہ, یاد رکھنا, تم چاہے جتنا بھی جھٹک لو اب تم مجھ سے الگ نہیں ہو سکتی. شیروز کی آواز میں وہ روک اور یقین تھا کہ علیزہ کا دل پگھلنے لگا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب 10 سال بعد آئیں گے اور میں آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگوں گی؟ میں وہ 13 سال کی بچی نہیں ہوں. علیزہ نے گردن اکڑا کر کہا, مجھے پتا ہے تم بچی نہیں ہو, اسی لیے تو اب میں تمہیں اپنی بیوی بنا کر رکھنا چاہتا ہوں. شیروز نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اعتراف کیا, تم سے محبت کرتا ہوں علیزہ, اور یہ بات میں نے اس دن بھی مانی تھی جب ہمارا نکاح ہوا تھا. علیزہ کا جی چاہا کہ وہ بھی کچھ کہے لیکن اس کی شرم نے اسے روک دیا. وہ بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہی. اس کا دل چاہ رہا تھا کہ شیروز کی ان باتوں کو سنتی رہے مگر اس نے چہرے پر وہی بے رخی سجائے رکھی تھی. واپسی کر گاڑی میں بھی علیزہ خاموش رہی. وہ اپنے اندر اٹھنے والے جذبات سے لڑ رہی تھی. اسے شیروز کا اظہار کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا مگر اسے یہ جتانا نہیں چاہتی تھی. حویلی پہنچ کر سب سونے کی تیاری کر رہے تھے. علیزہ اپنے کمرے میں آئی اور کپڑے تبدیل کر کے لیٹ گئی مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی. اسے بار بار شیروز کا وہ چمنا یاد آ رہا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. اچانک اسے کھڑکی کے باہر کسی سائے کا احساس ہوا اور ساتھ ہی عجیب و غریب سرگوشیاں سنائی دینے لگی. علیزہ کا خون خشک ہو گیا. اسے بچپن سے اندھیرے اور جنات سے بہت ڈر لگتا تھا اور یہ بات شیروز کو اچھی طرح پتا تھی. کھڑکی پر کسی نے ناخنوں سے دستک دی اور ایک بھاری سی آواز آئی, علیزہ باہر آؤ. علیزہ نے ڈر کے مارے کمبل اپنے سر تک تان لیا. اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا. اچانک اس کے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا. علیزہ نے ہمت جمع کر کے کمبل سے جھانکا تو اسے سامنے ایک سایہ نظر آیا. وہ زور سے چیخی اور بیڈ سے اتر کر سیدھی دروازے کی طرف آ گئی. سامنے شیروز کھڑا تھا جو شاید ابھی اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا. علیزہ نے بنا کچھ سوچے سمجھے اسے زور سے گلے لگا لیا. اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھینچ لیا. شیروز, وہاں کوئی ہے؟ علیزہ روتے ہوئے ہانپ رہی تھی. شیروز نے اسے اپنی باہوں میں بڑھ لیا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا. پرسکون ہو جاؤ علیزہ, کچھ نہیں ہے وہاں میں. شیروز کے لہجے میں اب شرارت چھپائے نہ چھپ رہی تھی. آپ کو مذاق لگ رہا ہے؟ میں سچ کہی, ہاں کچھ جن ہے. علیزہ نے اس کے سینے میں سر چھپاتے ہوئے کہا. شیروز نے اسے خود سے دور کیا اور اس کے آنسو پوچھے. دیکھو
وہاں کوئی نہیں ہے، وہ تو بس میں تمہیں یہ یاد دلانا آیا تھا کہ تمہیں آج بھی ڈر لگتا ہے۔ آپ مطلب وہ آوازیں آپ نکال رہے تھے؟ علیزے نے غصے سے اسے دیکھا اور اسے اپنے پیچھے دھکیلا۔ آپ بہت برے ہیں شروز، میں کبھی آپ سے بات نہیں کروں گی۔ علیزے نے روحان سی ہو کر کہا، برا تو میں ہوں ہی، لیکن اس برے انسان سے تم نے اتنی زور سے لپٹ کر کیوں پناہ لی تھی؟ شیروز نے اس کے چہرے کے قریب جھک کر شرارت سے پوچھا۔ علیزے شرم سے لال ہو گئی اور اپنا چہرہ چھپانے لگی۔ آؤ میرے ساتھ۔ اس وقت مگر کہا؟ علیزے نے گھبرا کر پوچھا۔ خاموش رہو ورنہ بی جان جاگ جائیں گی۔ شیروز نے لبوں پر انگلی رکھ کر سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور آگے بڑھ کر اس کی کلائی تھام لی۔ علیزے نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر شیروز کی انگلیوں کا لمس اس کے پورے وجود میں بجلی کی طرح دوڑ گیا۔ شیروز اسے کھینچتا ہوا بالکنی سے ہوتا سیڑھیوں کے ذریعے حویلی کی چھت پر لے آئے، جہاں چاند کی ٹھنڈی روشنی ہر چیز کو چاندی کی طرح چمکا رکھا تھا۔ چھوڑے میرا ہاتھ شیروز، آپ کو پتا ہے ابا سائیں دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ علینا نے چھت پر پہنچتے اپنا ہاتھ چھوڑا مگر اس کی آواز میں وہ پہلی والی سختی نہیں تھی۔ سب کو پتا ہے کہ میں اپنی امانت کے پاس جا سکتا۔ شیروز نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت ایک ایسی چمک تھی جو علینا کو بے بس کر رہی تھی۔ شیروز نے اپنی جیب سے ایک مخملی ڈبیا نکالی اور علیزے کے سامنے کر دی۔ یہ کیا ہے؟ علیزے نے حیرت سے پوچھا۔ کھول کر دیکھو، شیروز نے دھیمے لہجے میں کہا۔ علیزے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے وہ ڈبیا کھولی تو اندر ہیرے کی ایک نازک سی انگوٹھی چمک رہی تھی، جس پر ایک چھوٹا سا سرخ پتھر جڑا ہوا تھا جو بہت خوبصورت تھی۔ یہ میں تمہارے لیے لایا تھا، میں نے سوچا تھا کہ جب واپس آؤں گا تو سب سے پہلے اپنی علیزے کو یہ پہناؤں گا۔ شیروز نے انگوٹھی نکالی اور علیزے کا بائیں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ علیزے ساکت کھڑی رہی، اس کا دل چاہا کہ اپنا ہاتھ کھینچ لے مگر اس کے پاؤں جیسے چھت کے ساتھ جم گئے تھے۔ شیروز نے نہایت محبت اور نرمی سے انگوٹھی اور اس کی انگلی میں پہنائی اور پھر اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھ دیے۔ علیزے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ آنسو دیکھ کر نہیں بلکہ دکھ کے نہیں، اس احساس کے تھے جو اسے اندر سے نہال کر رہا تھا۔ آپ مجھے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ علیزے کے منہ سے انجانے میں سوال نکل گیا، کیونکہ تم میری زندگی کی پہلی اور آخری سچائی ہو علیزے۔ تمہاری یہ شرارتیں، یہ ضد اور یہاں تک کہ تمہارا مجھ سے یہ جھوٹا غصہ بھی مجھے عزیز ہے۔ ان 10 سالوں میں اگر میں نے کچھ کمایا تو صرف تمہاری محبت کی امید تھی۔ علیزے نے نظریں چکا لی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ شیروز کو بتا دے کہ وہ بھی اس کی بغیر ادھوری تھی، مگر زبان نے پھر سے بے وفائی کر دی۔ آپ بہت زیادہ جذباتی باتیں کرتے ہیں۔ جذباتی نہیں، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ شیروز نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ جہاں اقرار کی ہزاروں داستانیں لکھی تھی، کیا تم اب بھی کہو گی کہ ہمارا نکاح صرف بڑوں کی ضد تھی؟ علیزے خاموش رہی مگر اس کی خاموشی میں ایک گہرا اقرار تھا۔ شیروز نے اسے اپنے حصار میں لے لیا اور علیزے نے پہلی بار اس کے سینے پر سر رکھ کر خود کو دنیا کی سب سے محفوظ لڑکی محسوس کرنے لگی۔ اس دن حویلی کی چھت پر چاند گواہ تھا کہ دو دل جو برسوں سے دور تھے اب ایک ہو چکے تھے۔ اگلے کئی دن حویلی میں شیروز اور علیزے کی آنکھ مچولی چلتی رہی۔ کبھی شیروز کچن میں علیزے کو اکیلا پا کر اس کا راستہ روک لیتا تو کبھی لائبریری میں اسے پکڑ کر زبردستی اپنی باتیں سناتا۔ علیزے کو شیروز کی اس بدتمیزی میں بھی ایک عجیب سا سرور ملنے لگا تھا۔ اسے اب شیروز کا انتظار رہتا کہ وہ کب آئے گا اور کب اسے اپنے روبدار آواز میں علیزے کہہ کر پکارے گا۔ حویلی میں اب فضا بدل چکی تھی اور سردار بخت اور چودھری حشمت کی دوستی نے جیسے پورے خاندان کو ایک نئی زندگی دے دی تھی۔ سب سے زیادہ تبدیلی چچا نادر میں آئی تھی، جو اپنی اداسی کی چادر اتار پھینک چکے تھے، لیکن ابھی تک ایک بات ادھوری تھی اور وہ تھا ان کا رشتہ۔ ایک شام جب سردار بخت بیٹھے ہوکا پی رہے تھے، شیروز نے موقع دے کر بات شروع کی۔ دادا سائیں، حیدر بھائی کی شادی تو خیر و عافیت سے ہو گئی، لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ایک رشتہ جو برسوں پہلے ادھورا رہ گیا تھا اب اسے مکمل ہو جانا چاہیے؟ سردار بخت نے گہرا سانس لیا اور شیروز کی طرف دیکھا۔ تم نادر اور زبیدہ کی بات کر رہے ہو نا؟ سردار بخت کی بات سن کر سب حیران رہ گئے۔ جی دادا سائیں، شیروز نے سنجیدگی سے کہا۔ ان دونوں نے اپنی زندگی کے بہترین سال ایک دوسرے کے انتظار میں گزار دیے، اب جبکہ آپ اور چودھری صاحب سے دوست بن چکے ہیں تو اس رشتے میں کوئی
रखावट नहीं होनी चाहिए। सरदार बख्त पहले तो खामोश रहे, फिर मुस्कुरा कर बीजान की तरफ देखा, जो कि पास ही बैठी थी। रजिया बेगम, तुम क्या कहती हो? उनके अपने अंदाज से लग रहा था कि वो राजी हैं। मैं तो यही कहती हूँ कि अब देर ना करें, कल ही पैगाम भेजें। बीजान ने खुशी से कहा तो माहौल में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। अगले दिन सरदार बख्त खुद चौधरी हशमत के घर गए और नादिर के लिए जुबैदा का हाथ मांगा। वर्षों की जुदाई के बाद जब ये खुशखबरी हवेली पहुंची तो सबसे ज्यादा अलीजे और दुआ ने ही हंगामा मचाया। अभी देखा, मैंने कहा था ना कि शेरोज भाई सब ठीक कर देंगे। दुआ ने अलीजे को चीरते हुए कहा, जो इस वक्त शेरोज के लिए चाय बना रही थी। तुम्हारी शेरोज भाई को बस अपनी ही पड़ी रहती है। अलीजे ने मुंह बसूर कर कहा, मगर उसके दिल में शेरोज के लिए इज्जत और मोहब्बत मजीद बढ़ गई थी। उस समय शेरोज किचन में दाखिल हुआ तो दुआ फौरन भाग गई, मगर अलीजे वहीं फंस गई थी। शेरोज ने किचन का दरवाजा अंदर से बंद किया और अलीजे के करीब आ गया। सुना है चचा नादिर का काम तो बन गया, अब हमारा क्या होगा? शेरोज ने उसकी कमर के गिर्द हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचा। अभी तो चचा की शादी है, हमारी बात बाद में होगी। अलीजे ने उसके सीने पर हाथ रख के कहा, चचा की शादी के साथ ही रुखसती होगी अलीजे, अब मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। शेरोज ने उसके गाल को छुआ तो अलीजे ने आंखें मूंद ली। आप इतने जिद्दी क्यों हैं? क्योंकि तुम्हारी ये जिद सिर्फ मैं अपनी जिद से ही संभाल सकता हूँ। शेरोज ने मुस्कुरा कर कार से मजीद अपनी गिरफ्त में ले लिया। कुछ दिन बाद हवेली में एक बार फिर रौनक लगी थी। इस बार दुल्हा चचा नादिर थे और इनके चेहरे की खुशी इतनी थी, पूरी हवेली को रोशनियों से सजाया गया था। जुबैदा जब दुल्हन बनकर हवेली में दाखिल हुई तो सबने उनका इस्तकबाल किसी मलका की तरह किया। नादिर ने जुबैदा का हाथ थाम कर उनकी तरफ देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। वो 10 साल का तवील सफर एक लम्हे में खत्म हो गया था। शादी की उस रात जब सब जश्न में मसरूफ थे, शेरोज अलीजे को लेकर हवेली के पिछले हिस्से में चला गया। वहां चांदी में नहाए हुए फूलों की महक अजीब सा समा पैदा कर रही थी। आज मैं बहुत खुश हूँ अलीजे, शेरोज ने एक बेंच पर बैठते हुए कहा और अलीजे को अपने पहलू में बिठा लिया। क्यों? अलीजे ने उसकी आंखों में देखकर कहा। शेरोज उसका हाथ थामकर उसकी उंगली में पहनी अंगूठी को चूमने लगा, इसलिए कि आज चचा नादिर को उनकी मोहब्बत मिल गई और इसलिए भी कि अब अगली बारी हमारी है। अलीजे ने पहली बार अपना सर अली शेरोज के कंधे पर रख दिया। उसे महसूस हुआ कि वो शेरोज के बगैर अब अधूरी है। उसे उसकी बदतमीजियां, उसका रूप और उसकी मोहब्बत सबसे अजीज हो चुके थे। हवेली में चचा नादिर की शादी के हंगामे अभी खत्म ही हुए थे कि सरदार बख्त ने अगला बड़ा ऐलान कर दिया। शेरोज और अलीजे की शादी की तारीख तय पा चुकी थी। हवेली जो पहले ही रोशनी में नहाई हुई थी, अब एक नए जोशो खरोश से भर गई थी। अलीजे के लिए दिन किसी ख्वाब जैसे थे। वो लड़की जो हर वक्त शेरोज से लड़ती थी, अब चुपचाप अपनी मेहंदी लगी हाथों को नहारते हुए मुस्कुराती रहती थी। शादी को वो दिन भी आ गया जब शेरोज ने अपनी दुल्हन को हमेशा के लिए अपना बना लिया। निकाह के बाद जब रुखसती का वक्त आया तो अलीजे की आंखों में आंसू थे, मगर शेरोज का मजबूत हाथ उसके हाथ में था, जो उसे यकीन दिला रहा था कि वो कभी अकेली नहीं होगी। रात के पिछले पहर शेरोज का कमरा गुलाब के फूलों से महक रहा था। अलीजे सुर्ख रंग के बारी अरूसी जोड़े में मलबूस बेड पर बैठी अपनी लड़ती हुई उंगलियों को मरोड़ रही थी। उसे आज शेरोज से अजीब सा डर लग रहा था, वही शेरोज जिससे वो बचपन से लड़ती आई थी, अब उसका मजाजी खुदा था। दरवाजा खुलने की आवाज से शेरोज अंदर दाखिल हुआ। उसे शेरवानी उतारकर कुर्सी पर रखी और धीरे धीरे अलीजे की तरफ बढ़ा। अलीजे ने घबरा कर अपना घूंघट थोड़ा सा नीचे कर लिया। शेरोज बेड पर उसके बिल्कुल सामने बैठ गया और एक गहरा सांस लिया। अलीजे, क्या सारा वक्त इस घूंघट के पीछे ही गुजारने का इरादा है? शेरोज की आवाज में वही पुरानी शरारत और अपनायत थी। अलीजे ने कोई जवाब नहीं दिया। शेरोज ने नरमी से उसका हाथ थामा और अपने लबों से लगाया। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, इतनी खूबसूरत कि मेरा दिल कर रहा है कि तुम्हें कहीं छुपा लूं ताकि कोई और ना देख ले। शेरोज ने धीमे लहजे में कहा, अब ऐसे भी हैं बेशर्म और जिद्दी। शेरोज ने उसका घूंघट उल्टाकर उसके चेहरे से हटाया तो अलीजे की शर्म से सुर्ख हुई रंगत ने उसे मसरूर कर दिया। शेरोज ने उसकी आंखों में झांका, जहां अब सिर्फ उसके लिए मोहब्बत थी। अलीजे ने नजरें झुका ली। जिद्दी तो मैं हूं अलीजे, वरना 10 साल तुम्हारा इंतजार कैसे करता? शेरोज ने उसकी ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा।
تم تو بہت بہادر بنتی تھی، لیکن آج تو تم کانپ رہی ہو۔ اس کی بات پر علیزے نے جھوٹ بول دیا۔ میں نہیں کانپ رہی۔ علیزے نے اسے اپنے مزید قریب کر لیا تھا۔ اچھا تو پھر یہ دل اتنی زور سے کیوں دھڑک رہا ہے؟ شیروز نے اپنا ہاتھ اس کے دل کے مقام پر رکھا۔ جہاں دھڑکنیں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہی تھی۔ شیروز نے اپنی جیب سے ایک ڈبیا نکالی اور علیزے کے سامنے رکھی۔ یہ تمہاری موتی کھائی کا تحفہ ہے۔ علیزے نے ڈبیا کھولی تو اس میں سونے کا ایک نفیس سا بریسلیٹ تھا۔ یہ بہت پیارا شیروز بھائی۔ اوہ سوری۔ شیروز کے چہرے کے تاثرات ایک دم سے بدلے۔ اسے جھک کر علیزے کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ اگر اب تم نے کبھی بھائی بھولا کہا تو میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تم پھر عمر بھر یاد رکھو گی۔ علیزہ نے معصومیت سے پوچھا، کیسی سزا؟ شیروز نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی ہزار میں لے لیا اور اس کے چہرے کے قریب جھک گیا۔ ایسی سزا کہ تمہاری بولتی ہی بند ہو جائے گی۔ شیروز نے شرارت سے کار علیزہ کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ علیزہ نے شرم کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنا سر شیروز کے چوڑے سینے پر ٹکا دیا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت سفر اب شروع ہوا ہے۔ حویلی کے اس پرسکون کمرے میں دو دل جو برسوں کی جدائی کے بعد ایک ہوئے تھے اب ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے رنگ میں رنگ چکے تھے، اور باہر چاندنی اپنی پوری آبوتاب سے چمک رہی تھی۔ اگلی صبح کا سورج طلوع ہوا تو علیزہ کا سر شیروز کے سینے پر تھا۔ اچانک شیروز کی آنکھ کھلی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر علیزہ کے چہرے سے بالوں کو اٹھایا تو علیزہ جھٹ پٹ سے اٹھ بیٹھے اور شرماتے ہوئے وہاں سے بھاگنے لگی تو شیروز نے سختی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بیگم صاحبہ، اب کہاں بھاگ رہی ہیں آپ؟ اب تو رخصتی ہو گئی ہے اور اب یہ میں دوریاں برداشت نہیں کروں گا۔ وہ دوبارہ سے اس کے سینے سے لگ چکی تھی اور خاموشی سے اس کی ساری بات سن رہی تھی۔ وہ میں کہنا چاہتی تھی کہ بہت دیر ہو چکی ہے، تیار ہو کر نیچے جانا چاہیے، مگر اس کی آواز نکل ہی نہیں رہی تھی۔ اس میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ اپنے صاحبہ کے سینے سے سر اٹھا کر وہاں سے جا سکے۔ علیزہ نے مکمل طور پر سرنڈر کر دیا تھا، کیونکہ محبتوں میں احتجاج نہیں ہوتے۔